Now in today's class our topic is self management skills. Self management skills, this is again one of the part of part A. The first part of this already we have done, that is communication skill. Now second part of that part A is self management skill. Now let's know what is this. First of all, we'll have the introduction. Here in the pic you can see self management. वर्ड से क्लियर है, मैनेजिंग आवर सेल्फ. ओके, कंट्रोलिंग आवर सेल्फ इज सेल्फ मैनेजमेंट, राइट. सेल्फ मैनेजमेंट इज अबाउट टेकिंग कंट्रोल, right? Means controlling ourselves. It is the ability to control and regulate our emotions, our thoughts, our behaviors as per the situation, जिसे हम self control भी कहते हैं ना, that is self management. It helps in achieving predetermined goals by regulating our time and taking responsibility of our decisions. Means if we are self managing ourselves, then definitely time management hoga. Whatever the work we have decided in prior, in advance, whatever the decision we have taken, we'll be able to complete each and everything on time if we are self managed only, right? Self management can be defined as our ability. It's self management कुछ और नहीं है, it's our ability. किस चीज की भाई? Number 1, managing our task and goals successfully. जो भी हमारे काम है, doing all them on time, function amicably with others, दूसरों से proper तरीके से अगर किसी का कुछ काम कर रहे हैं, that should be done on time. Okay, we control our feelings, to control our emotions, to control our activities, to tolerate unpleasant situations. Suppose कोई unwanted या ऐसी situation भी है that we don't like to be in that situation, फिर भी उस सिचुएशन में कंट्रोलिंग आवरसेल्व्स, बहुत जबरदस्त गुस्सा आ रहा है, इवन देन वी आर कंट्रोलिंग, अगले को पता ही नहीं चलने दे रहे कि हमें गुस्सा आ रहा है एंड वी आर लूजिंग आवर कंट्रोल. तो दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट. Deal with the difference of opinions with others. Suppose you are discussing in a group. Okay, 5 members are there, 4 are agreeing with one thing and you are at opposition. Fine. तो at that time again you can feel uncomfortable कि भाई आप minority में आ गए हैं and maximum majority is at other side, right? So in that situation, putting your opinion and keeping yourself in control, that is one of the part of self management. Then learning new ideas sincerely, handling ourselves and work towards reaching goal. So self management is most important to achieve your goals. Self management में everything is covered which is related to yourself. हमसे रिलेटेड कोई भी चीज है, हमारा गुस्सा, हमारी खुशी, हमारी एक्टिविटीज, हमारे कंट्रोल्स, हमारी daily routine, everything, our time management, everything is covered under this self management. Okay, now under self management one of the word comes, that is stress and its types. अब आजकल लॉकडाउन के पीरियड में तो स्ट्रेस वर्ड बहुत ही हाईलाइट हो गया इन द न्यूज, इट्स आल्सो देयर इन द न्यूज़पेपर, इट्स आल्सो देयर. Okay, now let's know what is this stress. Stress is what? It's a feeling of emotional or physical tension. जब भी हमें कोई टेंशन हो ना, एक्चुअल में कोई टेंशन ना भी हो, बट इमोशनल और फिजिकल बॉडी भी थकी थकी लगे, स्ट्रेस लगे, कुछ परेशान नहीं है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्ट्रेस. इट्स आवर बॉडीज रिएक्शन टू अ चैलेंज और डिमांड. कोई चैलेंज आता है हमारे पास, कोई इमीडिएट काम आता है और हमारे पास टाइम नहीं है वो करने का, तो हमें क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा. ठीक है, या कुछ ह्यूमन बीइंग्स दे आर लाइक दैट, अगर किसी ने मुझसे कुछ मांगा एंड आई एम नॉट हैविंग दैट, मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, इवन देन आई गॉट स्ट्रेस, ओहो मैं बेचारे को दे नहीं पाई. तो स्ट्रेस, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वन. आप बच्चे ना, आप बच्चों के साथ भी हर किसी की अलग अलग स्ट्रेस डेफिनेशन है. कोई बच्चा जरा सी डांट से बहुत स्ट्रेस आ जाता है, किसी को थप्पड़ लगा लो तब भी स्ट्रेस नहीं होता. फाइन, तो दैट इज स्ट्रेस इज डिफरेंट. हाँ जी बच्चे. मैम अमन सिंह को ऐड कर लो 10th एग्जाम से, वो बोल रहा है अभी. दिस क्लास इज नॉट फॉर A7 A6, दिस क्लास इज स्टिल A4. A5 6 7 विल बी टेकन इन द नेक्स्ट क्लास. अभी वो अपनी दूसरी क्लास ज्वाइन करेगा. हाँ जी बोलो. नेक्स्ट क्लास इज मैथ. बच्चे
For today only I am connecting. Let him know. Okay? चलिए, let's do. चलो, next is stress means different things to different people. मैं ये discuss कर चुकी हूँ that for every person stress is different. Fine. Now stress is again of different types. अभी मैंने बताया अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के लिए अलग अलग चीजें स्ट्रेस है. किसी के लिए ज्यादा होमवर्क स्ट्रेस है, किसी के लिए फिजिकल पीरियड स्ट्रेस है, अगर किसी को गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है और उसे कह रहे फिजिकल पीरियड में यू हैव टू गो टू द ग्राउंड, तो उस बच्चे के लिए वो स्ट्रेस है. फाइन. तो वन ऑफ द स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस. अब आप कहेंगे मैम स्ट्रेस की तो टर्म ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? तो अब हम दो स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ पॉजिटिव स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस which results from exhilarating experiences can be positive. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग से एक्सपीरियंस, जो चीज आप पहली बार कर रहे हैं, करते हुए जब तक वो चीज नहीं होती यू विल बी इन स्ट्रेस. ओहो मुझे तो आता नहीं है, मैं सीख सीख के कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा. ऑल दैट कम्स इन आवर माइंड. तो दैट उससे पहले चीजें जो हो रही है दैट इज स्ट्रेस फॉर अस. बट लास्ट में हम वो नई चीज भी बहुत ब्रिलियंटली कर लेते हैं. तो एक्चुअल में दैट स्ट्रेस वाज द पॉजिटिव स्ट्रेस. वी हैव लर्नड समथिंग, वी हैव अचीव्ड समथिंग. Okay, it gives a motivation to you, a zinc to your life. Okay, that rejuvenates. Rejuvenate means हमारे अंदर एक नई एनर्जी पुट करता है. दैट पॉजिटिव स्ट्रेस. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब तक ज्यादा काम नहीं होगा ना, दे विल नॉट डू देयर होमवर्क. थोड़ा बहुत काम हो, सपोज ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, तो यू शुड से मम्मी ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, कर लेंगे ना कर लेंगे ना. जब तक बहुत बंडल ऑफ वर्क इज नॉट देयर, टिल देन दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. आप में से भी बहुत सारे होंगे, ठीक है. तो जब ज्यादा काम हो जाता है तो थोड़ा स्ट्रेस होता है एंड दे स्टार्ट डूइंग. तो दैट इज नॉट नेगेटिव स्ट्रेस, दैट इज द पॉजिटिव स्ट्रेस. राइट. नाउ नेगेटिव स्ट्रेस, इट इज रियली हार्मफुल फॉर अस. इट स्ट्राइक्स आवर बॉडी एंड आवर माइंड इन नेगेटिव वे. ओके. इट स्टेम्स फ्रॉम फियर ऑफ लूजिंग. किसी को खोने का डर है, क्लास में फेल होने का डर है, टेस्ट में 0 मार्क्स आने का डर है, या कई बार पहली बार मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होते एक्सीलेटर पे लोगों को चढ़ने का डर होता था, है ना. काम ओवरलोड हो जाए उसका डर है. इन एवरी सिचुएशन वी सी ट्रीज एज डिस्ट्रक्टिव डेलिब्रेटिंग फोर्सेस. मीन्स इन ऑल दीज नेगेटिव सिचुएशन ऐसा लगता है हमारी बॉडी की एनर्जी जा रही है. वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इट्स ट्रू ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस बिकॉज नेगेटिव स्ट्रेस causes distress. Such stress affects us in harmful manner. I have already told you it affects our mind as well as body also. Okay. For few people, positive stress is very beneficial. Okay. But for everybody, negative stress is harmful. Okay. Now, what is the meaning and importance of stress management? A big stress, so it's already there in our lives. Especially in lockdown period, you people, जो बच्चे हैं, they are locked at their home. We are not allowed to move to the shops. We are not allowed to move in the streets. We are not allowed to play with our friends in the streets or grounds. Okay, तो all that is not allowed. तो बच्चे obviously क्या करें, पूरा दिन घर में मोबाइल देखते हैं, मम्मी डांटती है, टीवी देखते हैं, डांट पड़ती है, मोबाइल पूरा दिन पढ़े कैसे? It's not possible. Fine. तो stress is already there. तो how to manage your stress? ओके. सबसे मेन चीज पढ़ेंगे अब हम. सॉरी. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफस्टाइल. स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? अब स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, इसको मैनेज करना क्या है? सेटिंग योर लाइफ एज पर यू. अपनी लाइफ पे के ऊपर कंट्रोल लेना. कैसा मुझे लाइफस्टाइल रखना है, व्हाट शुड आई थॉट, how I should express my emotions, means the way you deal with problems. कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो how to deal with that. Okay, it starts with identifying the sources of stress in your life. तो सबसे पहले you have to identify that किस चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है. Okay, what are the sources of stress in your life? First of all, you have to identify that. Okay, adequately managed stress prevents medical and physical illness. If we are able to manage our stress, तो हमें कोई मेडिकल इश्यू नहीं होगा, मीन्स हम बीमार नहीं होंगे, एंड नो फिजिकल स्ट्रेस, मीन्स बॉडी में कहीं दर्द, किसी को सर दर्द होता है, किसी को माइग्रेन होता है,
तो उन सब से हमें छुटकारा मिलेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट्स लीड्स टू मेनी बेनिफिट्स। अब कौन कौन से बेनिफिट्स है? नंबर 1, हमारा मूड इंप्रूव होगा अगर हम स्ट्रेस मैनेज करते हैं। बूस्ट इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगी। इट प्रमोट्स लॉन्गेटिविटी, मीन्स हम कोई भी काम कॉन्टिन्यूटी में लंबे समय के लिए वी विल बी एबल टू डू। लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्प्लिशमेंट, मीन्स इफ फिजिकल any task is to be done, so we will be able to do. It increase efficiency and effectiveness. Whatever the work we people will be doing, that will be much more better if the stress is managed. Okay, परेशानी में, प्रॉब्लम्स में कोई भी काम करते हैं तो that's not that much good. Fine. Prevents psychological disorders, कोई mental issue या कई बार कुछ कहते हैं हमें मैं भूलने लगा हूँ, मेरा दिमाग सेंटर में नहीं है, तो all those things they are rectified if we manage our stress. अब कौन कौन सी चीजें स्ट्रेस देती हैं? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस आर। अब कहां कहां से स्ट्रेस आता है? कुछ लोगों को मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है। इट इज ऑफन स्पोकन of as emotional stress. It involves powerful feelings and emotions. कुछ बंदे स्ट्रेस होते हैं, उनकी आंखों से आंखें भर आती हैं, they becomes emotional. फाइन। तो एक मेडिकल टर्म भी है इसके लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इट्स अ डिसऑर्डर बेसिकली, ठीक है। फ्यू पीपल हैव फिजिकल स्ट्रेस। इट रेफर्स टू हाउ बॉडी रिएक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक। कुछ लोगों को मेंटल स्ट्रेस में दे स्टार्ट फॉरगेटिंग, कुछ चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक ही काम को दोबारा बताते हैं किसी को, भाई हाँ मैंने तुझे बताया नहीं था, बट पर्सन सेज नहीं नहीं मुझे तो पहले ही बता चुका था। फिजिकल स्ट्रेस में क्या होता है? द स्ट्रेस स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर बॉडी। कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, बैक एक हो जाता है, बॉडी पेन, फाइन। तो दैट इज फिजिकल स्ट्रेस। देन कम्स सोशल स्ट्रेस। इट रिलेट्स टू द स्ट्रेस इन्वॉल्व्ड इन इंटरेक्टिंग विद सोशल पीपल। अपने नेबरहुड में किसी से अनबन हो जाए उसका स्ट्रेस, या सोशली इन आर ऑफिशियल, जो भी हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन जो भी वर्किंग एरिना है, इन दैट व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द पीपल सम सिचुएशन कम और सम रिलेशनशिप, मेरा फ्रेंड है उसके साथ भी तो मेरा सोशल रिलेशनशिप है ना, उसके साथ मेरी अनबन हो जाए, उसका भी स्ट्रेस आ जाता है, तो दैट कम्स अंडर सोशल स्ट्रेस। देन कम्स फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब नाउ इन द लॉकडाउन पीरियड मेनी ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, तो मनीटरी इश्यूज आर देयर, है ना। तो डेफिनेटली दे पीपल विल बी हैविंग राइट नाउ द फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब हर चीज के लिए फीस चाहिए, पैसे चाहिए हर चीज के लिए, फॉर फूड सेटिस्फेक्शन, फॉर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मीन्स ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए हमें मनी नहीं चाहिए। तो इफ job is not there, then from where the money will come? And obviously the stress will be there on the person, and that stress which is due to the money, that is called financial stress, right? Now coping with stress, कैसे लड़े stress से? Now in the picture you can see there are many methods. Number 1, you can play with your pets. अगर आपके घर में pets हैं, छोटे बच्चे हैं, जरूरी नहीं है पैट ही हो, छोटे बेबीज हैं, प्ले विद देम, डू एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़ी सी झप्पी ले लें, झप्पी मीन्स दोपहर में थोड़ा सा सो जाएं, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, यू कैन मेडिटेट, योगा करें। दीज ऑल आर द मेथड्स टू कोप विद योर स्ट्रेस, ठीक है। मैनेजिंग स्ट्रेस इज ऑल अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर थॉट्स। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे कंट्रोल करना, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपने जो स्ट्रेस के रीजंस है उनको ढूंढेंगे, एंड जिससे भी हमारी अनबन हुई है ट्राई टू स्पीक। देखो कभी भी हमारी किसी से लड़ाई होती है ना, गो अहेड, पहली पहल आप करें, टॉक टू द पर्सन, बिलीव मी यू विल फील मच 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 बेटर, बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप सुधरे नहीं सुधरे, बट स्ट्रेस ऑलमोस्ट 1/4 हो जाता है, ओके। जब भी गुस्सा आ रहा है, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, वॉक अवे, उस सिचुएशन से निकल जाओ, पैदल वॉक लो, लड़ाई जिनकी बीच में लड़ाई हो रही है छोड़ के वहां से निकल जाए, ठीक है। इससे पहले सिचुएशन बिकम्स मोर वर्स्ट, लीव दैट सिचुएशन, ओके, एंड गेट हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल तो जो जिनको मेंटल इश्यू हो जाता है, दे कनेक्ट विद द साइकेट्रिस्ट,
ठीक है। लेकिन इन केस अब आप लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, यू विल नॉट गो टू द साइकेट्रिस्ट। आपके साइकेट्रिस्ट कौन है? योर मम्मी, योर पापा, योर दादू दादी। टॉक टू योर एल्डर वंस, बड़े भाई बहन, उनसे शेयर योर फीलिंग्स। अच्छी फीलिंग भी शेयर करें, बुरी फीलिंग भी शेयर करें, शेयर ईच एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली यू विल गेट गुड सजेशंस। okay, that is how we can cope with the stress. Now stress management strategies, क्या strategies अपना सकते हैं? नंबर 1, अवॉइड नेसेसरी अननेसेसरी स्ट्रेस। जहां हमारी जरूरत नहीं है, जो चीज हमसे लिंक्ड अप नहीं है, उस सिचुएशन का व्हाई टू टेक स्ट्रेस भाई, व्हाई? ठीक है, कोई हमसे कुछ मांग रहा है, हमारे पास नहीं है, सीधा बोलो ना, नो, नहीं है भाई, और आई कांट प्रोवाइड, फाइन। कई बार कुछ लोग होते हैं जो चीज नहीं भी है ना, चल मैं उससे पूछ के देता हूँ भाई। भाई थर्ड पर्सन कैन आस्क डायरेक्टली, डोंट बी अ मीडिएटर इफ नॉट रिक्वायर्ड अर्जेंटली। ठीक है, टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरमेंट, अपनी चीजें अपने हाथ में रखें। ठीक है, टेक योर ओन डिसीजंस योरसेल्फ। उन चीजों बंदों से दूर रहें जो आपको टेंशन देते हैं, राइट? उसके बाद ऑल्टर द सिचुएशन, इफ सिचुएशन इज बिकमिंग ऑफ स्ट्रेस, तो उस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करें। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग देम अप। अपने अंदर ही अंदर चुप चुप रह के अंदर घुटने से अच्छा स्पीक आउट, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। किसी के आगे सॉरी या बात करने से यू विल नॉट बिकम छोटा और बड़ा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन दैट पर्सन विल ऑल्सो फील गुड एंड यू विल फील मच 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 बेटर। Okay, be more assertive. All assertive means be more positive and manage your time better. Next is accept the things you can't change. जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, accept that. देखो, जिस सिचुएशन को we can change, you must be guilt for that, which is in our control. But the things which is not in our control, why to take stress for that? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल थिंग्स। ओके, शेयर योर फीलिंग्स। सबसे अच्छा तरीका है शेयर योर फीलिंग्स। लर्न टू फॉरगिव। किसी से गलती हो भी जाती है एंड यू बिकम हर्ट, टॉक टू दैट पर्सन, बात करो। शेयरिंग योर फीलिंग्स इज द बेस्ट मेथड टू स्ट्रेस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। माफ कर दो, किसी की सच में भी गलती है ना, लेट इट बी, फॉरगिव। ट्राई करके देखना, रियली दीज आर बेनिफिशियल टेक्निक्स। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हम सबको पता है, ईट अ हेल्दी डाइट, अच्छे से नींद लें, दिन में भी छोटी सी नैप ले लें, छोटी सी झप्पी ले लेते हैं ना, वो भी बहुत फ्रेश कर देती है हमें। डू फिजिकल एक्सरसाइज, डू योगा, meditation can be done, enjoy going to vacations with the family. In nowadays we can't go to that vacations due to the corona, but still you can enjoy with your family. छत पे चले जाओ, बहुत सारी families nowadays they are trying और they are planning a picnic, a family picnic। और कहाँ पर? बड़े कहीं पहली बार तो मैंने भी सुना, तो बड़ी हंसी आई, at their roof, घर की छत पे इवनिंग में, एंड सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। करके देखना, पिकनिक के सारा ताम झाम तैयार करो, चटाई लो, अच्छे अच्छे फूड आइटम्स लो, छतरी लो, पानी लो, एंड गो फॉर 1 hour एंड एंजॉय एंड इमेजिन दैट यू आर ऑन द पिकनिक। अच्छा आइडिया है, ट्राई करना। टेकिंग नेचर वॉक्स, आसपास अगर कहीं छोटा मोटा पार्क है आपके आसपास, नॉट फार अवे, बिकॉज राइट नाउ द सिचुएशन इज नॉट दैट गुड, तो यू कांट गो। ना हेल्दी वे टू रिलैक्स एंड रिचार्ज, वही चीजें मैंने रिपीट किया, गो फॉर वॉक, स्पेंड टाइम इन नेचर, कॉल अ गुड फ्रेंड, जिनसे आपकी अच्छी पटती हो, मे बी योर गुड फ्रेंड, मे बी योर दादू दादी, चाचा चाची, बड़े भाई बहन, कजन्स, यू कैन कॉल एनीवन एंड टॉक टू देम। स्वेट आउट टेंशन विद अ गुड वर्कआउट, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने से टेंशन चली जाती है, अच्छा वर्कआउट करने से, है ना? तो राइट इन योर जनरल, कुछ लोगों को लिखने से, जिनको पोइट्री का शौक है, दे कैन राइट इट आउट। कुछ लोग सिर्फ अपनी डेली डायरी लिखते हैं, आज मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये बुरा किया, दिस वन दिस दैट, डू दैट, जॉट डाउन दैट इन द डायरी। टेक अ लॉन्ग बाथ, कुछ स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं, कुछ बहुत देर तक बाथ लेते हैं, तो स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। सबकी अलग टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लाइट सेंटेड कैंडल्स, कुछ लोग अपने रूम को डेकोरेट करते हैं, या होम थिएटर चला के बैकग्राउंड में स्लो स्लो म्यूजिक, अच्छे सा फ्रेगनेंस रूम में डाल देते हैं, मीन्स अपने ही दुनिया में गुम।
अपने ही रूम में अपने काम कर लेते हैं. Enjoy a warm cup of tea, coffee, है ना. कुछ लोगों को शौक है, कुछ को अपने मनपसंद चीजें घर में, केक बनाया, खा लिया, रोटी पिज्जा बनाओ, है ना, बर्गर बनाओ घर में, not from outside. Mean your favorite food items can be prepared and enjoyed at home. Play with your pet. You can work in your garden. घर में जो home gardens होते हैं, you can work there. ठीक है. You can color with good look. अच्छे से तैयार हो, good dressing, good makeup, good hairstyle. That really make you feel better. Listen to your favorite music. You can watch out any comedy movie, comedy cartoon. These all comes in the techniques of stress management. Okay. Now, importance of the ability to work independently means if we do our work independently, what's the benefit? Being self-aware, self-monitoring, and self-regulating means अपना control अपने हाथ में. ठीक है. First of all, we should know what you need to do. हमें क्या करने की जरूरत है. Taking the initiative yourself rather than waiting for instruction. कोई भी प्रोजेक्ट हमने शुरू किया तो टेक योरसेल्फ एज फर्स्ट स्टेप. ये नहीं कि कोई मुझे, मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ने को कहेंगे देन ओनली आई कैन स्टडी. नो, इट्स फॉर योर बेनिफिट. यू शुड बी सेल्फ अवेयर अबाउट योरसेल्फ. मेरे लिए ये जरूरी है तो आई शुड डू इट. आई शुड इनिशिएट फॉर दिस. वी शुड नॉट वेट कि कोई और आके हमें इंस्ट्रक्शन दे. राइट. डूइंग व्हाट इज आस्क्ड टू डू इन द बेस्ट योर एबिलिटी. अगर आप पढ़ रहे हैं तो डू दैट. चाहे आप आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, डू दैट इन द बेस्ट वे. दिखाने के लिए पढ़ना और जस्ट टू शो ऑफ, दैट्स नॉट राइट फॉर यू ऑल्सो. ओके. वर्क अंटिल द जॉब इज कंप्लीटेड. अगर आपने डिसाइड किया कि आज मैं मैथ्स का काम कंप्लीट करके उठूंगा तो कीप ऑन वर्किंग अंटिल योर वर्क इज कंप्लीटेड. राइट. लर्निंग टू वर्क एट योर ओन पेस. खुद करने की, अपना काम खुद करने की कोशिश करें. एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस. कोई गलती हो भी जाए देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक, से सॉरी. डोंट लुक आउट फॉर द एक्सक्यूजेस and not allowing self-doubt or negative emotions affect your efficiency. If anybody comment on you, maybe negative comment, let it be. The people are there just to demotivate us. Keep it in your mind. There are very few people, और बहुत अच्छे इंसान कम हैं, which positively motivates everyone. Okay? So make yourself a positive person which can motivate others. The skills needed to work independently: organizational skills, multitasking abilities, discipline, जो हमारे अंदर चाहिए. Organization skill means doing work in a group. अब घर में आजकल ग्रुप कहाँ से आएंगे भैया? अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, इन सबके साथ मिलजुल के काम करो ना. That's also organization skills. Multitasking abilities, घर में कोई काम आजकल नहीं भी आता है, do learn that. Try to do everything. Be disciplined. Communication skills, we must work on this. Negotiating skills, ठीक है. कोई काम अपना निकलवाना भी है तो मानने वाली स्किल्स जो हैं, ठीक है. Negotiating. Flexibility should be there. अगर if anything is not going as per your choice, तो be flexible. Don't stick to one decision कि नहीं यही होना चाहिए. Don't be stick to that. Okay? You must be flexible. हो जाता है तो that's good, नहीं होता है that's okay. Right? Adaptability. Try to make yourself comfortable in every situation. Be adaptable. ठीक है. Be compatible to every situation. That if that may be of your choice, or that may not be of your choice, but you should be adaptive. Then you should be open-mindedness. ठीक है. Don't be orthodox. चलिए. Now next is self-awareness. What is self-awareness? थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं. मीन्स बीइंग अवेयर अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में जानना. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. इज टू हैव अ क्लियर परसेप्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी. व्हाट आर माय नेगेटिव्स, व्हाट आर माय पॉजिटिव्स. मेरे क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस है, क्या मेरे बिलीव हैं, क्या मेरे थॉट हैं. चलो आपका ना ये वाला होमवर्क है. जब आप इस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे और बैक एक्सरसाइज करेंगे, एक क्वेश्चन ये भी है, अपनी 5 नेगेटिव और पॉजिटिव ढूंढने हैं. मैं गारंटी हूँ किसी बच्चे को नहीं पता. जब मेरे से फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था, आई वाज आल्सो नॉट अवेयर.
ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस वी मस्ट नो, इट्स द सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस व्हाट वी डू, वी कैन पे अटेंशन टू व्हाट बॉदर्स यू अबाउट अदर पीपल। जो चीज दूसरे लोगों के बारे में आपको प्रॉब्लम देती है ना, सपोज कोई आके आपके सामने चुगली करता है और आपको, आप यूं कहते हैं देख कैसा पर्सन है, उसकी बुराई कर, अभी तो उसका फ्रेंड बन रहा था, तो चेक इट आउट दैट दिस क्वालिटी इज इन यू और नॉट, ध्यान रखो। तो देन इन दैट वे यू विल बिकम सेल्फ अवेयरनेस अबाउट यू। ये जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। देन मेडिटेट ऑन योर माइंड, योगा करें, द बेस्ट थिंग फॉर बीइंग सेल्फ अवेयर। रीड हाई क्वालिटी फिक्शन, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ें। आइडेंटिफाई योर इमोशनल क्रिप्टोनाइट, अपना इमोशनल लेवल, कितनी किस चीज से जल्दी आप इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी सैड हो जाना, डू यू आर लाइक दैट और नॉट। ड्रॉ टाइमलाइन फॉर योर लाइफ, एक टाइम शेड्यूल डिसाइड करें, मुझे इस टाइम तक ये चीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद मुझे ये करना है, दैट शुड बी प्लान। आस्क फॉर फीडबैक एंड टेक इट वेल। कोई काम करते हैं अपने बड़ों से, बड़े भाई बहन, दादू दादी, मम्मी पापा, आस्क फॉर फीडबैक कि मैंने ये काम, कोई काम सपोज पिज्जा ही बनाया, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पूछे हाउ वाज इट, नेगेटिव आता है, ये टाइट था, टिक्की में नमक कम था, ये था वो था, डोंट बी फील बैड, टेक इट इन अ गुड सेंस, और नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे वो चीजें रिकवर हो जाएंगी। फाइन, तो ऑलवेज वेलकम द फीडबैक। डू सम माइक्रो ट्रेवल, छोटा मोटा ट्रेवल कर लें, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, गो टू योर फ्रेंड्स प्लेस, दादूज प्लेस, है ना, जहां भी आपको अच्छा लगता है, छोटी ट्रेवलिंग, दैट इज माइक्रो ट्रेवलिंग, राइट। लर्न अ न्यू स्किल, कोई नई चीज सीखें, आपको कोई लैंग्वेज अच्छी लगती है, डू लर्न दैट लैंग्वेज। इन नाउअडेज ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल। अच्छा, कोई कुकिंग का शौक है तो नए नए फूड आइटम्स, जस्ट वॉच आउट द वीडियोज एंड ट्राई देम एट होम। Identify cognitive distortion, means skills which you can learn. Cognitive means body movements related to things are included here, means suppose you love dancing and you don't know dancing, so you can, with the help of online tutorials, you can learn that. You have to identify that these skills are there in your or not. Make time to clarify your values, अपने आप को पहचानने के लिए give yourself time. Now types of self awareness क्या होता है? Self awareness of strength means to identify your strengths, to identify your weaknesses, to identify your flaws. क्या क्या से flaws और weakness सेम आ जाता है? Awareness of emotional triggers. To everyone it's not clear बच्चे? क्लियर है क्लियर है मैम। मैम, क्लियर है मैम। Okay, Clear है बेटा मैम। check out, No, ma'am. बेटा check out the network. क्लियर नहीं है। Okay, बेटा. Okay, बच्चे. Okay. Only for 2 slides are left. After that, we'll be completing. Okay. Type of self-awareness. Strength we should know. Weakness we should know. Flaws. Emotional triggers. Means किस चीज से हम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत जल्दी रो सकते हैं, क्या चीज हमें रुला देती है, क्या चीज हमें बहुत खुश कर देती है. We should know that. Right? Motivation. Motivation is what? It's a driving force. अब मैं आपको कहूँ बेटा, आपको है ना 40 वाली चॉकलेट मिलेगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो दैट चॉकलेट इज अ मोटिवेशन फॉर दैट चाइल्ड. ठीक है, तो अगेन मोटिवेशन इज डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल. हर बच्चा, जरूरी नहीं है हर बच्चे को मैं चॉकलेट दूं और वो काम कर देगा, नो. जिसकी फेवरेट चॉकलेट है उसी वही चॉकलेट से मोटिवेट होगा ना. तो दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट कंपेल्स एन एक्शन टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल. ओके, कोई काम करने के लिए हमें फोर्स करे, भाई करना है तुझे काम, ये कर लेगा तो ये मिलेगा, दैट इज मीन्स. तो वो चीज इस केस में जो चॉकलेट है, दैट इज अ मोटिवेशन फॉर अस. ठीक है, इट्स अ पर्पस टुवर्ड्स एन एक्शन. अब फिर मोटिवेशन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज इंट्रिंसिक, जिसको इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक, जिसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं. ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन इज ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट इन टास्क इटसेल्फ, जो अंदर से मोटिवेशन आती है. ठीक है, मैं कुकिंग कर रही हूँ और साथ में मैं गाने सुन रही हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो मैं कुकिंग को मैं बोलूंगी मम्मी कल से मैं रोज यही करा करूंगी, तो दैट इज इंटरनल मोटिवेशन. ठीक है, कोई बाहर से आपको जबरदस्ती कह के करवाए
उससे जब खुद अपने आप अंदर से महसूस हो कि आई शुड डू इट एंड आई कैन डू इट एंड आई डू इट, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मैंने अभी चॉकलेट का एग्जांपल दिया, जब बाहर से आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई इनाम मिलता है, कोई शाबाशी मिलती है, फाइन, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, दैट इज एक्सटेंसिव मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करो, इससे बेटर कि कोई हमें मोटिवेट करे, मोटिवेट योर सेल्फ। अब यहाँ क्या लिखा है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो कि हमें और सुधरने की गुंजाइश ही न रहे। इट्स अ फोर्स दैट कीप्स पुशिंग अस टू गो ऑन एंड अचीविंग आवर गोल्स, ठीक है। इट्स आवर इंटरनल ड्राइव, हमारे अंदर से ही मोटिवेशन होगी टू कीप मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इट्स अ फंडामेंटल टूल फॉर रीचिंग आवर गोल्स। कैसे होती है सेल्फ मोटिवेशन? सपोज कोई बच्चा क्लास में अच्छा है, 80-90% मार्क्स स्कोर्स, वो डिसाइड करता है मैं इस बार ना क्लास का मॉनिटर बनूंगा ही बनूंगा। वो ट्राई करता है डिसिप्लिन रहने की, इंग्लिश स्पीकिंग एंड एवरीथिंग अप टू डेट। एट लास्ट वो मॉनिटर बन गया, गोल अचीव हो गया। अब वहां पर आके वो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर वो कहता है नहीं मैं तो कैप्टन बनूंगा, हाउस कैप्टन बनूंगा। देन अगेन ही कीप्स ऑन हार्ड वर्किंग, नेक्स्ट ईयर वो हाउस कैप्टन बन जाता है। देन उसके बाद वो वहां भी सेटिस्फाइड नहीं होता, ही कीप ऑन मोटिवेटिंग कि ये अचीव हो गया, अब ये करना है, अपने आप को ही फोर्स करना, अपने आप को ही धक्का देना आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद वो कहता है नहीं मुझे तो हेड बॉय बनना है, तो ही स्टार्ट्स वर्किंग फॉर दैट। डोंट स्टॉप, एक चीज हासिल कर ले, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ, ओके। डू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ, हम ही अपने आप को सबसे ज्यादा मोटिवेट और डीमोटिवेट कर सकते हैं, ओके। देयर आर 8 स्टेप्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। सिंपल स्टार्ट करें, कीप गुड कंपनी, बी इन गुड संगत, ओके। कीप लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखते रहें, सी द गुड इन बैड, if you see any of the bad guy, any of the bad situation, try to search out what was good in that, fine, stop thinking, और मैं बेसिकली कहूंगी stop overthink, ज्यादा नहीं सोचना। know yourself, be aware about yourself, क्या कमी है मेरे में, क्या मेरी क्वालिटी है, क्या मेरी डिसक्वालिटीज है, and track your progress, keep a track, मैंने कितना गोल डिसाइड किया था and how much of that I have achieved, that is सेल्फ मोटिवेशन। एंड ऑलवेज इफ यू कैन, अगर कर सकते हो तो हेल्प अदर्स, राइट। नाउ सेल्फ रेगुलेशन, वही मिलते जुलते टर्म्स हैं, इन द एग्जाम भी टर्म पूछ लेते हैं। रेगुलेटिंग योरसेल्फ, कीपिंग अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स, इन सब को कंट्रोल करना, दैट इज रेगुलेटिंग। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज डिसरप्टिव इमोशंस और impulses, कोई भी जल्दी रोना, जल्दी खुश हो जाना, regulating all that. You can't smell it or see it. Strategies for self regulation, mindfulness means keep your mind busy, खाली मत बैठो, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। Don't be idle, keep yourself busy, involve the cultivation of moments to moment awareness through deep breathing, mindfulness रखें। Cognitive reappraisal involves charging your thoughts process changing, लगातार सीखते रहें, फ्रॉम एनीवेयर, जहां से भी सीखने को मिलता है सीखें, और जरूरी नहीं एक थॉट बना लिया कि ये बच्चा ऐसा है, अगर वो बच्चा कल को दूसरी कुछ अच्छा काम करता है तो सॉल्व अपना माइंड चेंज करें, नहीं ये अच्छा है, अगर वो कुछ और करता है नहीं ये बहुत अच्छा है। तो इन्वॉल्व चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस, डोंट स्टिक टू वन स्टेटमेंट, okay. Acceptance and problem solving involves acceptance of a situation and then finding ways to tackle it. कोई situation, कोई problem आ भी गई तो accept it कि हाँ भाई वाकई में this problem is with us, आ गई, अब कहे भगवान तूने ये प्रॉब्लम क्यों दी, हम क्या करेंगे, ये वो, don't do that. Accept the situation and find out the ways how now we will tackle with this, इसका solution क्या करें, okay. That is self regulation, okay. That's it from now.